Hello students, today we will read again geography, the globe, latitudes and longitudes, the remaining part of the latitudes and longitudes. In the previous video, we know about the latitudes, longitude, axis, globe, and important latitudes, also the longitudes, and the heat zone. So once, for the quick review for those students who didn't watch this our previous video, let's start once again. Globe, is the small model of the earth. It may be either of wooden, it may be either of plastic, balloon like etc and etc. यानी कि ग्लोब क्या है? दिस इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी का एक मॉडल है, यह पृथ्वी नहीं है. एंड द थिंग्स, all the things are demarcated, all the things are marked on the globe, by the different colors we learned previously. The globes moves on its axis. So and we know about the lines which are drawn vertically and horizontally. These all are called the longitude and latitude respectively. Means those lines which are drawn on the globe vertically, ऊपर से नीचे आपने देखा, उसको हम longitude कहते हैं. एंड हॉरिजॉन्टली, जो आपको गोलाई में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम आप कह सकते हैं, वो आपको लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखा उसे हम कहते हैं हिंदी में, और जो वर्टिकल है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है. व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यू विल रीड इन सीनियर क्लास. बट थोड़ा सा जान लीजिए आप कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स are very important for locating, for saying the actual situation, actual point of any place. किसी भी स्थान को सही जगह पर हम दिखाने के लिए, उसका स्थान सही बताने के लिए हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करते हैं. आप आगे क्लास में पढ़ेंगे. जैसे हमारे भारत है, कहाँ है? वेयर इज आवर इंडिया लोकेटेड ऑन द ग्लोब? हाउ कैन वी गेट? तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. एंड द सेम वे ये आपको 66 डिग्री 6 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट्स. ये अभी आप समझेंगे कैसे. तो ये हमने देखा आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. वी ऑल्सो न्यू अबाउट द लार्जेस्ट लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड the equator. And we know that the tropic of Cancer, tropic of Capricorn, Antarctic circle, Arctic circle, these are the important latitudes. We also know about the frigid zone, torrid zone, temperate zone, and yes, torrid zone, temperate zone, and frigid zone. And now we will discuss about the longitudes. The longitudes, all the lines which are drawn on the globe vertically. And when we can see the net of the latitude and longitudes, these are called the grid. Now, importance of longitudes. Students, longitudes is very important. It says about the time of a place. We have already discussed in earlier video that longitude also divides the globe into 2 equal halves, as the eastern hemisphere and western hemisphere, as well as equator divided as the northern hemisphere and southern hemisphere. So now we will know that the 0 degree longitude, which is known as the prime meridians, the longitudes are also known as the meridians. So meridians have not the same distance
meridians are not located and situated on the same distance as well as the latitudes. Latitudes same distance पे है, जिसे हम इसलिए हम इसे parallel of latitudes कहते हैं. But as we go towards the upwards or bottomwards, यानी कि पोल की तरफ हम जैसे बढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड जो है वो सटता चला जाएगा और बाद में एक पॉइंट पर हो जाता है, जहां हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं. यानी कि टॉप पॉइंट को नॉर्थ पोल, साउथ पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं. तो ये हमें क्या होता है कि पृथ्वी को, ग्लोब्स को 360 डिग्री में बांटा जाता है. तो जीरो से आप देखेंगे 180, तो इधर ईस्टर्न और इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है. 0 डिग्री, एक डिग्री मेरिडियन का वैल्यू 4 मिनट होता है. वो इसलिए होता है कि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम लेती है. तो हम उसे निकाल लेंगे कि 360 लैटीट्यूड जो है वो 24 को हम आपको 60 से गुना करेंगे तो 1440 आएगा. तो वो आपको 360 डिग्री 1440 में, यानी कि 1440 में जाता है, तो एक डिग्री आपका 4 मिनट आ जाएगा. स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम बीइंग. टाइम हम कैसे जानेंगे? 0 डिग्री जो है वहीं से टाइम शुरू होता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनिच मीन टाइम के नाम से हम जानते हैं. एज वी मूव टुवार्ड्स द राइट साइड, द टाइम विल अहेड 4 मिनट पर meridian, and as we go leftward, the time will be slower 1 degree, means यानी कि 4 डिग्री पर मिनट. अब ये होता है कि जैसे जैसे हम दाहिने तरफ जाएंगे, यानी कि उस तरफ घड़ी फास्ट होता चला जाएगा और लेफ्ट तरफ जाएंगे बाएं तरफ. अगर हम भारत का देखें तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है. तो हम कैसे निकालेंगे कि भारत से हमारा इधर भारत के जितने भी पश्चिम देश होंगे उनका घड़ी हमसे स्लो होगा, और जो राइट साइड होगा वो हमारा हमसे घड़ी उनका फास्ट. जैसे बांग्लादेश का घड़ी हमसे आधा घंटा फास्ट है, पाकिस्तान का घड़ी हमसे आधा घंटा स्लो है. ये कैसे देखेंगे हम? ये उनका स्टैंडर्ड मेरिडियन से पता चलता है. तो भारत की घड़ी 82.5 डिग्री है बच्चों, तो उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग 5 घंटा 30 मिनट होता है. यानी कि इंग्लैंड से ऐसा हमारा घड़ी. अब सवाल है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन हम 82.5 डिग्री क्यों लेते हैं? वो हमारे देश के बीच से गुजरता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं. तो ये प्राइम मेरिडियन हो गया. अब आपको वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम बिकॉज इंडिया हैव अ डिफरेंसेस अबाउट द 29-30 डिग्री. यानी कि हम आपको अगर देखेंगे तो अपना जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, उन दोनों के बीच को हम दूरी निकालेंगे तो लगभग 2 घंटे से 120 मिनट, 2 घंटे से ज़्यादा होगा. 30 का हो जाता है तो 30 × 4 यानी 120, ये ज़्यादा हो जाता है. तो हमें टाइम में अंतर हो जाएगा. इसलिए बीच से जो लाइन हमारा गुजरा है इलाहाबाद नैनी से 82.5 डिग्री, उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं. So this is now end of the chapter. We will do the question answer either by video or I will send you the question answer. If you have any problem, students, you can directly contact me on my WhatsApp number as you have been doing like this. Thank you very much.